important, even in case of job as well as in case of your business. Soft skill is very important. Even in home also, soft skill is very important. Everyone should learn the soft skills. Today we are going to read very important chapter. Anjali madam, welcome. Anjali madam is a content writer. She is a founder of Write Plus, and she is also editor of this book, Know Your Balance Sheet. All of you know the author of this book is C.A. Hanumantrao Chaudhary, myself. Over to you, Anjali madam. You can read the chapter 13. What are the soft skills? Thank you very much. Thank you, HR sir. Good evening and welcome to all. Today we are going to read this new chapter on soft skills. As sir mentioned, soft skills are very important in all aspects of life and definitely in your professional life. So, what are soft skills? Soft skills are personality traits and behavior. Unlike technical or hard skills, soft skills are not about the knowledge you possess, but the behavior you display in different situations. Soft skills include any skill that can be classified as a personality trait or habit. Interpersonal skills and communication skills are more specific categories of soft skills that many employers look for in job candidates. So 10 essential soft skills we are going to see here. The very first is communication. A good communicator is able to articulate their ideas and genuinely listen to other people. Communication skills include writing, speaking, active listening, and collaboration. At work, you need solid communication skills to write clear and compelling emails, talk to co-workers and clients, pitch an idea to your boss, create a persuasive presentation, and even collaborate with the team. For all these, you need excellent communication skills. Next is problem solving. Good problem solvers are able to analyze challenges and solutions, either alone or in a group. This skill includes critical thinking, decision making, and the willingness to ask questions and explore new ideas. At work, you need problem solving skills to discuss a problem calmly and objectively with the team, examine how a problem affects different constituents, come up with possible solutions and evaluate each idea, make a plan to carry out the solution. Next page. Third is data analysis. Data analysis is all about how you use numbers and information to make decisions. These skills include mathematical reasoning, quantitative analysis, and quantitative communication skills. At work, you will use data analysis to study data to support business decisions, answer questions, and solve problems. Identify information gaps where more data and analysis are needed, find statistics to support a project, create clear and effective spreadsheets, and translate data into graphs, charts, or other visuals. Next is productivity. Employees with strong productivity skills are able to strategize, organize, plan, and deliver results. When people can count on you to get things done on time, you become an invaluable member of the team. At work, you need productivity skills to manage your time and stay focused to meet deadlines. Develop a project plan that includes goals, requirements, resources, and a timeline. Balance simultaneous projects and shifting priorities. Identify factors that block productivity and figure out how to address them. Next is digital proficiency. Digital proficiency is the ability to navigate technology to
accomplish a task, or reach a goal. When you have the skill, you know how to choose and then use the right technology for the job. So you can work as effectively and efficiently as possible. Next page. At work, you need digital proficiency skills to choose the best software for a specific purpose, whether it's to schedule social media posts or conduct video conference calls. Make the most of productivity software. Be comfortable using both desktop and cloud-based technologies. Use the internet to communicate and conduct research. Sixth point is creativity. Creative employees can think outside the box to generate original ideas and solutions. Creativity is related to curiosity, which enables you to learn new things on the job. Creative people enjoy playing with possibilities. At work, you need creativity to brainstorm groundbreaking ideas and solutions, either alone or in a group. Ask questions to uncover new ideas. Keep an open mind as you evaluate possible solutions. Solve problems that at first glance seem unsolvable. Point 7 is agility. When you are agile, you are able to adapt to a changing work environment. You can do your job well even when the ground is shifting under your feet. Mental agility allows you to go with the flow, embrace complexity, and stay curious. Interpersonal agility helps you stay open-minded with others, which brings out the best in everyone. At work, you need agility to adapt to new or unfamiliar work situations, meet deadlines and other expectations even when conditions aren't ideal. Make quick decisions with confidence. Toggle between tasks without getting flustered. Focus on a project even outside factors threaten to distract you. Right? Next is confidence. When you have confidence on the job, you believe in your ability to tackle tasks and goals that you may not immediately know how to do. You don't have the answer right away. You'll figure it out. You can count on yourself to find the help and resources you need to succeed. At work, you need self-confidence to maintain a positive outlook when challenges arise, communicate clearly and assertively with co-workers and supervisors, celebrate your achievements and communicate them to upper management, serve in a leadership role. Next is self and social awareness. Working professionals, as productive and competent as they may be, are human beings with feelings. Monitoring your emotions and being aware of how others are feeling are invaluable skills to have in the workplace. At work, you need social emotional skills to self-reflect and learn from past mistakes, see things from someone else's point of view, collaborate effectively with teams, build strong, trusting relationships with co-workers, clients, and supervisors, and provide great customer service. Next page. 10th point is drive. People with drive are able to keep themselves motivated to reach a goal. And even when obstacles arise, they keep on going towards the finish line. At work, you need drive to make progress on projects in the face of adversity. Work towards a promotion. Bounce back after setbacks and failures. Persevere even when the going gets tough. So we'll stop here. These are excellent points to think over, and HR will elaborate them more. Over to you, sir. Yes, thank you, madam. Thank you very much.
थैंक यू। जो सॉफ्ट स्किल है, सॉफ्ट स्किल आर पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर। सॉफ्ट स्किल जो है ये आपका कैरेक्टर्स एंड बिहेवियर होता है, अनलाइक टेक्निकल और हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल आर नॉट अबाउट द नॉलेज यू पोसेस बट द बिहेवियर्स यू डिस्प्ले इन डिफरेंट सिचुएशंस। जो सॉफ्ट स्किल है इट्स टोटली बिहेवियर एंड कैरेक्टर्स। जो हार्ड स्किल है यू आर गेटिंग सम सर्टिफिकेट्स, लाइक यू आर getting the software trainings of certificates and your degree certificate. All these are the hard skill. Soft skill, it's a depend upon your behavior, how you behave during the different situations. Soft skill include any skill that can be classified as personality trait or habits. Interpersonal skill and communication skill are more specific category of soft skill. Many people's employer are from the job candidates. जो interpersonal skill है मीन्स आप दूसरे लोगों के साथ में कैसे आप बात करेंगे, कैसे आप बिहेवियर करेंगे, ये जो भी आपका बिहेवियर है, कैरेक्टर है, दैट इज ऑल आर योर सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल में टोटल 10 एसेंशियल सॉफ्ट स्किल का एसेंशियल ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स टोटल 10 है। सॉफ्ट स्किल में क्या क्या आपका कैरेक्टर्स होना चाहिए उसमें हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले जो है दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरेवर यू गो, communication is very important. How you communicate with the peoples and how you represent yourself, that is very important. जो good communicator होता है they easily share their ideas, means they represent very good manners whatever they have the ideas. उतना ही नहीं है, वो खुद का आइडिया शेयर करेंगे और दूसरों का भी आइडिया उन्होंने सुन के लेंगे। इवन गुड लिसनिंग ऑल्सो गुड कम्युनिकेशन स्किल। बहुत सारे लोगों को ऐसे होता है कि कम्युनिकेशन स्किल मीन्स ओनली टॉकिंग। टॉकिंग सिर्फ बात करने से कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। ए गुड लिसनर्स आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल में कौन सा इंक्लूड होता है? राइटिंग इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, स्पीकिंग ऑल्सो कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग ऑल्सो कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन ऑल्सो वन ऑफ द कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस इज हैविंग ऑल दिस द कैरेक्टर्स। ये सब कम्युनिकेशन आपके पास हुआ तो यू आर द बेस्ट पर्सन। अभी बहुत सारे लोगों को ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सुनना नहीं सिर्फ बात करने से कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इंक्लूड ए गुड लिसनर आल्सो, बिकॉज वेरी गुड लिसनर्स इज द गुड कम्युनिकेटर समटाइम आल्सो। सो यू आर ऑलवेज समटाइम यू शुड बी ए गुड लिसनर। एट वर्क यू नीड सॉलिड कम्युनिकेशन स्किल टू। कम्युनिकेशन स्किल जॉब में क्या क्या आपका पास होना चाहिए? राइट क्लियर एंड कंपेलिंग ईमेल्स। जो भी आप ईमेल राइट करेंगे दैट शुड बी वेरी क्लियर एंड कंपेलिंग। मींस आपका जो पर्पस है वेरी शॉर्ट एंड स्वीट में होना चाहिए। नहीं तो मैसेज रहेगा 2 लाइन का, आपने 10 लाइन लिखा तो रीडर गेट बोर्ड। एंड सो मेक कंपेलिंग एंड वॉट एवर यू वांट टू प्रेजेंट यू प्रेजेंट इन वेरी सिस्टमेटिक मैनर। टॉक टू को वर्कर्स एंड क्लाइंट्स। आपका जो भी को वर्कर्स है, कुछ उनको दिक्कत है, आपका क्लाइंट से उनसे कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी है। पिच एन आइडिया टू योर बॉस। सपोज आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास कुछ आइडियाज है बट बहुत सारे लोग वो हेजिटेट करते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट दैट आइडियाज, बट यू शुड बी कम्युनिकेट टू योर बॉस वॉट एवर यू आइडिया यू हैव। क्रिएट परवेसिव प्रेजेंटेशंस। यू ऑलवेज डू द प्रेजेंटेशंस वेरी वेल। कोलैबोरेट विद द टीम्स। टीम के साथ में आपको अच्छा तरफ से काम करना पड़ेगा। दूसरा जो एसेंशियल स्किल है सॉफ्ट स्किल का दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, a good problem solver are able to analyze challenges and work hard towards solutions. तो प्रॉब्लम सॉल्वर है वो ही इज वर्किंग टू एनालाइज हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। अभी बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं होता है। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गया, सर ये ऐसे हो गया, ये नहीं चल रहे सर, इसको क्या करें। उसमें कोई एक बंदा ऐसे होता है कि ही इज द प्रॉब्लम सॉल्वर। उन्होंने क्या करते हैं, फाइंड द सॉल्यूशंस। ही गो इन द गूगल, उन्होंने गूगल में सर्च करके वो प्रॉब्लम क्यों आ रहे, एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एरर। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एरर आ गया तो मेरा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। यू शुड बी प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्व करने में हर एक प्रॉब्लम को आपको गूगल में बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, बट बहुत सारे लोग वो भी काम नहीं करना चाहते क्योंकि एरर आ गया, सर मेरा काम खत्म हो गया, एरर आ रहा है, अभी मैं क्या करूँ आगे। सो यू शुड बी ऑलवेज प्रॉब्लम सॉल्वर। वर्क में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होता है स्किल?
डिस्कस प्रॉब्लम कामली एंड ऑब्जेक्टिवली विद द टीम। जो भी प्रॉब्लम है आपको एकदम काम से आपका टीम के साथ में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। एग्जामिन हाउ प्रॉब्लम अफेक्ट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स। ये जो प्रॉब्लम्स हुआ वो कैसे इफेक्ट्स होगा अपना हर एक काम पे, अपना इसमें शेड्यूल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाएगा वो भी आपको एग्जामिन करना। कम अप विद द पॉसिबल सॉल्यूशन एंड इवैल्यूएट ईच आइडियाज। जो भी प्रॉब्लम्स आ गया उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है। अभी बहुत फॉर एग्जांपल्स, अभी सिंपल एक एग्जांपल्स में बोलता हूँ। अभी हम लोग हैथवे का ब्रॉडबैंड कनेक्शंस लिया हुआ है तो एकदम नेट गायब हो गया। तो कुछ लोग सोचते हैं कि सर अभी नेट गया तो काम खत्म हो गया। अभी उसमें एक आदमी सोचता है कि सर अभी हम लोग वाईफाई से अपना मोबाइल कनेक्ट करेंगे, हम लोग काम करने को चालू कर देंगे। दिस इज द हाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग। फॉर एग्जांपल्स, दिस इज वेरी स्मॉल एग्जांपल्स बट दिस आल्सो वेरी मैटर्स। मेक प्लान टू कैरी आउट द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन आपको ढूंढना ही है। Data analysis. Data analysis is also one of the problem soft skill analysis. Data analysis is all about how you use the numbers and information to make the decisions. आपको कुछ decisions लेना है तो आप numbers और information उसको कैसे आप यूज करेंगे। ये जो स्किल है इससे मैथमेटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव कम्युनिकेशन स्किल। वर्क में क्या क्या डाटा एनालिसिस आपका होना चाहिए। स्टडी डाटा टू सपोर्ट द बिजनेस डिसीजन, आंसर क्वेश्चंस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे हम लोग डाटा यूज करके सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। यू शुड आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन गैप वेयर मोर डाटा एनालिसिस आर नीडेड। आपको ये भी देखना है और कुछ एडिशनल डाटा चाहिए कि अपना प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए, वो भी आपको देखना है। फाइंड स्टैटिक्स टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट्स। आपको स्टैटिक्स फाइंड करना आपका प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट होना चाहिए। क्रिएट क्लियर इफेक्टिव स्प्रेडशीट। आपको एक स्प्रेडशीट बनाना है, वेरी क्लियर, आपका डाटा इजीली वो सब मिलना चाहिए। ट्रांसलेट डाटा इनटू ग्राफ्स, चार्ट्स और अदर विजुअल्स। ये जो डाटा है आप सपोज उसको एक ग्राफ्स में दे दिया, कुछ चार्ट्स में दे दिया तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। एक लेमन कैन अंडरस्टैंड। जब भी अभी हम लोग देखते हैं अपना सेल्स फॉर लास्ट 4 इयर्स में कैसे अपना सेल्स बढ़ गया, तो आप एक ग्राफ बना के आपके सामने रख लिया तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग द फिगर्स, इफ यू डन द ग्राफ लाइक ग्राफ दैट मेक द डिफरेंस। उसके लिए जो डाटा है आप उसको ग्राफ, चार्ट्स और अदर विजुअल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो फोर्थ अपना स्किल से दैट इज प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय विथ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्टिव स्किल आर एबल टू स्ट्रेटेजाइज, ऑर्गेनाइज, प्लान एंड डिलीवर द रिजल्ट्स। जो भी प्रोडक्टिव एम्प्लॉय होता है दे विल गिव द गुड रिजल्ट्स। व्हेन पीपल कैन काउंट ऑन टू गेट थिंग्स डन ऑन टाइम्स, यू बिकम एन इनवैल्यूएबल मेंबर्स ऑफ द टीम्स। आप कभी भी किसी के फोर्स में काम करना नहीं चाहिए। मींस प्रोडक्टिविटी, आप सुबह ऑफिस को गया तो आप आज शाम तक क्या प्रोडक्टिव काम किया, आप क्या आउटपुट कंपनी के लिए दिया, आप खुद क्या लर्न किया, पूरा आप 8 आवर्स 10 आवर्स आपने जो काम कर रहे, आपने क्या प्रोडक्टिव टाइम आपने स्पेंड किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट। उसमें सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, किसी का जबरदस्ती उससे होना नहीं चाहिए। सो दैट यू ऑलवेज यू शुड बी ए प्रोडक्टिव। काम पे अब एट वर्क यू नीड टू प्रोडक्टिव स्किल, मैनेज योर टाइम एंड स्टे फोकस ऑन मीट द डेडलाइंस। आपका जो टाइम है वो प्रॉपर मैनेज होना चाहिए। आपको जो भी डेडलाइंस दिया हुआ है वो इन टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। डेवलप ए प्रोजेक्ट प्लान दैट इंक्लूड्स गोल, रिक्वायरमेंट, रिसोर्सेस एंड टाइमलाइन। आपका प्रोजेक्ट प्लान भी करना है, उसका गोल्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, रिसोर्सेस क्या चाहिए, उसका टाइमलाइन क्या है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, वो भी आपके पास प्लान होना चाहिए। बैलेंस साइमल्टेनियस प्रोजेक्ट्स एंड शिफ्टिंग प्रायोरिटीज। अभी आपका पास सब एक 4 काम एकदम आ गया तो आपको उसमें प्रायोरिटी भी शिफ्ट होना चाहिए। प्रायोरिटी फिक्स करने के लिए भी आपको आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज आपको 10 काम आपका बॉस ने दिया, आप उनको पूछना चाहिए सर इसमें 10 में मेरा कौन सा पहले प्रायोरिटी दूं। मींस उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं कैसे उसको प्रायोरिटी में काम करूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो काम दे दिया 10, आप काम करने के चालू कर दिया, दैट इज नॉट ए गुड कम्युनिकेशन, गुड प्रोडक्टिविटी स्किल। सो यू हैव टू आस्क योर बॉस व्हाट प्रायोरिटी आई शुड डू। आपने जो 10 काम दिया उसमें किसको मैंने ज्यादा प्रायोरिटी दी। आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट ब्लॉक प्रोडक्टिविटी एंड फिगर आउट हाउ टू एड्रेस देम। आपका कुछ काम के लिए दिक्कत हो रहे तो आप उसको फाइंड आउट कर दीजिए, उसमें बाहर कैसे हम लोग आ सकते हैं। कुछ आपको दिक्कत हो रहे काम करते टाइम में, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। एंड फिफ्थ वन इज डिजिटल प्रोफिशिएंसी। Digital proficiency is the ability to navigate technology to accomplish tasks or reach a goal. When you have this skill, you have to choose and then use the right technology for the job so you can work efficiently and efficiently as possible. Now is the digital era, so you have to use the digital technology whatever you want to achieve your projects and goals.
काम में डिजिटल आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं. चूज द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, वेदर इट इज टू बी शेड्यूल सोशल मीडिया पोस्ट और कंडक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल्स. आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, आप जब काम कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केट में आपको बेस्ट एंड बेस्ट सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है. मेक द मोस्ट ऑफ प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर. आपको प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर बनाना है कंफर्टेबल यूजिंग विद डेस्कटॉप एंड क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी. जो सॉफ्टवेयर है दैट शुड बी यूज फॉर डेस्कटॉप एज वेल एज क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज. ऐसे आपका सॉफ्टवेयर यूज होना चाहिए. यूज द इंटरनेट टू कम्युनिकेट एंड कंडक्ट द रिसर्च. आप ऑलवेज यूज द, जो इंटरनेट के लिए भी वो सुटेबल होना चाहिए. मीन्स ज्यादा इंटरनेट नहीं रहा तो भी वो ज्यादा चलना चाहिए. मीन्स कोई किधर रेंज का कमी है तो वो भी आपका सॉफ्टवेयर है जो रन होना चाहिए. ऐसे आपका बनाना बहुत जरूरी. द सिक्स्थ वन कम्युनिकेशन स्किल इज द क्रिएटिविटी. Creativity employee can think outside the box to generate the original ideas and solutions. Always you should be a creativity. Not only employee, even if you are a businessman, you have the creativity. अब जब सपोज आप सुबह उठ के कंपनी में जा रहे हैं तो आज मैं क्या क्रिएटिविटी, आपको शाम तक ये पता होना चाहिए आप सुबह से शाम तक क्या क्रिएटिविटी किया, क्या चैलेंज आप उसको कैसे सॉल्यूशन निकाला. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. वर्क में कैसे कैसे क्रिएटिविटी चाहिए. आपका ब्रेनस्टॉर्म, ground breaking ideas and solution either alone or in a groups. आपको ground breaking ideas and solutions आपका ऐसे होना चाहिए. वो जो आइडियाज है आपको, वो जो प्रॉब्लम के लिए रेलेवेंट है, हम लोग उसको कैसे बाहर आ सके, ऐसे आपका आइडियाज आना चाहिए. आस्क क्वेश्चन टू अनकवर न्यू आइडियाज. कोई आइडिया को कवर नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन आपका टीम के साथ में पूछ सकते. कीप एन ओपन माइंड, या जो इवेल्युएट पॉसिबल सॉल्यूशन. आपको कभी भी ओपन माइंड रख के आपको काम करना बहुत जरूरी. सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट एट फर्स्ट ग्लांस सीम अनसॉल्वेबल. जो भी आपको लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना है, उसको पहले फोकस करके उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है. द सेवंथ वन इज द एजिलिटी. एजिलिटी मीन्स आपका इंटेलिजेंस, मीन्स चाणक्य. जो भी आपका चतुर, आपका जो नॉलेज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो फॉर द सॉफ्ट स्किल्स. व्हेन यू आर एजिल, यू आर एबल टू अडॉप्ट द चेंजिंग वर्क एनवायरमेंट्स. जैसे आपका वर्क एनवायरमेंट्स कौन सा भी होने दीजिए, तो कैसे आपका लास्ट ड्यू डेट है, नहीं तो आपको कुछ प्रेशर है, कुछ प्रोजेक्ट आपको विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पे आपको देना, विद इन 2 days में आपको डिलीवरी देना है. आप इतना एजिलिटी आपके पास रहा तो आप कौन सा भी सिचुएशन, कौन सा भी एनवायरमेंट में यू आर वर्किंग इन द काम एंड इन अ प्रेजेंट मूड्स. यू कैन डू योर जॉब वेल इवन द ग्राउंड इज शिफ्टिंग अंडर योर फीट. Mental agility allow you to go with the flow, embrace complexity, and stay curious. Interpersonal agility helps you to stay open-minded with others, which brings out the best in everyone. These all interpersonal agility, mental agility is very important for a successful employee as well as a businessman. आपका वर्क में क्या क्या एजिलिटी चाहिए. The adapt to new or unfamiliar work situations means कौन सा भी अनफेमिलियर, जो भी नया एनवायरनमेंट होता है उसको आप इमीडिएटली अडॉप्ट होना चाहिए. मीट द डेडलाइंस एंड अदर एक्सपेक्टेशन इवन व्हेन कंडीशन आर नॉट आइडियल. कैसे आपका जो डेडलाइन है, आपने जो कमिटमेंट दिया, बहुत सारे लोगों का भी कैसे सब, फॉर एग्जांपल्स अपना इन आवर प्रोफेशन द ड्यू डेट्स, एवरी मंथ ड्यू डेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू कंप्लीट द ऑल वर्क बिफोर द ड्यू डेट. अभी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उनका कुछ प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उनको 8 days में उसको डिलीवरी करना रहते हैं, ना तो उनका एक्सपोर्ट करना रहते हैं. तो एनी हाउ यू हैव टू कंप्लीट द योर डेडलाइंस. मेक क्विक डिसीजंस विद कॉन्फिडेंस. आपको क्विक डिसीजन भी लेना चाहिए. टॉगल बिटवीन टास्क विदाउट गेटिंग फ्लस्टर्ड. मीन्स आपको कंफ्यूज नहीं होना. आपका जो भी फोकस है उसमें फोकस रख के ही काम करना आपका बहुत जरूरी है. फोकस ऑन ए प्रोजेक्ट इवन व्हेन आउटसाइड फैक्टर्स थ्रेटन टू डिस्ट्रैक्ट यू. आपका जो भी बाहर का जो भी फैक्टर्स डिस्ट्रैक्ट कर रहे तो भी आपको ध्यान नहीं देना है. शुड ओनली फोकस ऑन योर वर्क. द 8th essential of the soft skill is the confidence. Confidence is very 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 important. ये कॉन्फिडेंस जो है ये मार्केट में नहीं मिलने वाले हैं. ये आपको खुद को कॉन्फिडेंस भी काम करना चाहिए. कॉन्फिडेंस आपको कब बनेगा, जब आप कौन सा भी काम कर रहे हैं, कौन सा भी आप उसमें नॉलेज है आपको, आप उसको कॉन्फिडेंस से काम कर सकते हैं. उसके लिए बिफोर यू स्टार्टिंग वर्क यू हैव टू वर्क ऑन दैट एंड यू डू द रिसर्च, डू द होमवर्क. इन दैट केस यू कैन गेट द कॉन्फिडेंस. So that is the one of the confidence of the soft skill. Essential of the soft skill is the confidence. You trust that even if you don't have the answer right away, you will figure it out. You can count on yourself to find the help and resources you need to proceed. दो confidence रहे तो ये सब चीजें आप कर सकते. Confidence आपका वर्क में कैसे कैसे आपको मेंटेन करना है.
मीन्स मेंटेन पॉजिटिव आउटलुक व्हेन चैलेंजेस अराइजेस। जैसे आपके सामने कुछ चैलेंजेस आ गया तो बहुत सारे लोग उसको नेगेटिव एस्पेक्ट्स में लेते हैं, मीन्स दे आर थिंकिंग अरे ये तो मेरे से नहीं होगा, इतना दिन में कैसे पॉसिबल है, मेरा पास अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, दे आर टेकिंग लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस एंड नेगेटिव थिंग्स। बट व्हेनेवर यू गेट द challenges you have to think positive. This is given opportunity for us to prove ourselves. जो भी आपका पॉजिटिव लेना है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, उसके आपको प्रूव करना है, आपका जो भी नॉलेज है वो प्रूव करने के लिए आपको एक टाइम मिल गया, you use that time very properly. Communicate clearly and assertively with the co-workers and supervisors. आपका जो भी को-वर्कर से एंड सुपरवाइजर से उनके साथ में अच्छा तरह से कम्युनिकेशन होना चाहिए। सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स एंड कम्युनिकेट देम टू अपर मैनेजमेंट्स। आपका जो भी अचीवमेंट्स है, कुछ आपने इन टाइम में काम कर दिया, कुछ आपने जो भी सॉफ्टवेयर का जो एरर्स है, बग्स है, आपने बहुत दिन से वो नहीं निकल रहे तो आपने निकल लिया उसको, यू अप्लाई योर माइंड्स, सो इन दैट टाइम यू कैन सेलिब्रेट एंड यू आल्सो इन्फॉर्म टू योर मैनेजमेंट। सर्व इन ए लीडरशिप रोल, ऑलवेज वर्क एज ए लीडर्स। बहुत सारे लोग लीडरशिप बनने के लिए हेजिटेट्स करते हैं, यू शुड नॉट बी हेजिटेट, यू ऑलवेज वर्क लाइक ए लीडर्स। सो लीडरशिप जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपने को लेना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते और दे वांट ओनली अथॉरिटीज, दे वांट ओनली राइट्स। एक्चुअली द गुड लीडर ऑलवेज टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जो भी लीडर है, गुड लीडर है, ही इज ऑलवेज टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी and the success will be sharing to the his teams. This is the how the characters of the leaders. जो भी responsibility है वो leaders लेता है और जब भी success मिलेगा, he talking about his, this is the contribution of his team, so that you work as a leader, not as a follower. And ninth one is the essential of the soft skill is self and social awareness. Nowadays social awareness is also very important because the environment of the company, you have to adopt that all environments. In work you self reflect and learn from the past mistakes. अपने कुछ खुद को देखना चाहिए, खुद का में क्या बदलना चाहिए, लास्ट टाइम में हमने जो मिस्टेक्स किया वापस वो मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, ये सब आपका सेल्फ एंड सोशल अवेयरनेस में आ जाता है। सी थिंग्स फ्रॉम द समवन एल्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपको दूसरा जगह पे जाके सोच के काम करना है। कोलैबोरेट इफेक्टिवली विद द टीम, टीम के साथ आपको कभी भी कोलैबोरेट होकर काम करना बहुत जरूरी है। बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद द कोवर्कर्स, क्लाइंट्स एंड supervisors. You always build the relations is very important. First you build the relationship, then you get the work. So you always build the relations is very important. And provide great customer service is also very important. Don't compromise in your services, so don't take excuse in your services is very important for in service industry as well as in manufacturing industry. Also commitments of delivery quality is also very important, so don't take compromise on that. The 10th is the drive. The people with drive are able to keep themselves motivated to reach the goals. जो drive like people होता है, they are always motivated, they are always thinking positives. आपका जैसे environment है, जो लोग, जो आपका जो leader है, आपका जो owner है, if he is the positive, he is the drive person, means he is having so much confidence to achieve his goals. He has a dream, he has a purpose. उनके पास ऑलरेडी बजट है, उनके पास ऑलरेडी 1 year का, 3 months का, 6 month का और 1 year का उनके पास गोल है। Even if you have a 5 years goal, his family goals, personal goals, physical goal, monetary goal, if you have all types of goals, means that person is called we are a drive person. He is always motivated person and he also motivated to the surrounding peoples. And even when obstacle arises, then they keep going on toward the finish line. Even कौन सा भी उनके बीच में दिक्कत आ गया, he cannot stop, he achieve his goals. वर्क में आपको कैसे ड्राइव रखना है, मेक प्रोग्रेस ऑन प्रोजेक्ट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। कौन सा भी आपका दिक्कत आ गया तो भी आपको प्रोग्रेस में रखना चाहिए, उसको कंटिन्यूअसली वर्क करना बहुत जरूरी है। वर्क टुवर्ड प्रमोशंस, आपका जो काम है वो प्रमोशंस होना चाहिए, मीन्स आपका नाम अच्छा होना चाहिए, मीन्स आपका आपने अच्छा काम किया, आपको प्रमोशन मिलना चाहिए। तो प्रमोशन कब मिलेगा, जब भी आपको जो कमिटमेंट दिया हुआ है वो आपने डिलीवर किया, वो प्रॉपर आपने काम कंप्लीट कर दिया, आपने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम कर दिया तो आपको प्रमोशंस मिलता है। सो यू ऑलवेज वर्क फॉर द प्रमोशंस। इवन एज ए बिजनेसमैन आपको बिजनेस ग्रोथ करना है तो भी आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन करने के लिए तो भी आपको ये मोड पे काम करना बहुत जरूरी है। बाउंस बैक आफ्टर सेटबैक एंड फेलियर्स, जो भी बिजनेस है, जो भी आप एम्प्लॉय है तो कुछ आपसे गलती हुआ तो यू कैनॉट डिप्रेस, यू शुड अगेन कम बैक फ्रॉम दैट सेटबैक्स एंड यू कैन स्टार्ट अगेन वर्किंग। सो आपको ये होना चाहिए, क्योंकि एक बार गलती हुआ वो दूसरा बार अपने को गलती नहीं करना है,
उससे बाहर आके हम लोग कैसे अगेन वी कैन गेट द सक्सेस। अभी बिजनेसमैन में भी हर एक बार सक्सेस मिलता है ऐसे कुछ नहीं है, एक बार आपको फेल्यूर मिला तो वो सेटबैक से हम कैसे बाहर आके उसका सोल्यूशन ढूंढ के आप वापस बिजनेस स्टार्ट कर सकते, ये भी अपना होना बहुत जरूरी है। परसवर इवन व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, आपको कंसिस्टेंसी मींस आपको जो भी आपका ये रहना है, मींस कॉन्फिडेंट इन कंसिस्टेंसी रहना, इवन आपका टफ टाइम आ गया तो भी आपको रहना बहुत जरूरी है। तो आज का हम लोग ये एसेंशियल ऑफ दी सॉफ्ट स्किल से हम लोग इधर रुकेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर 13 में ही वाई आर सॉफ्ट स्किल सो इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट वीक हम लोग इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू अंजलि मैडम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। टुडे वी विल स्टॉप हियर for essential of soft skill, and next week we'll read why are soft skill important. Thank you very much, and meet next week. Thank you so much. Yes, thank you very much. Thank you, madam.